to face a challenge. For the open-minded who dream big and go bigger. With a view to provide energy to its eastern part, in early 80s, NTPC has set up a coal-based plant in the state of Bihar at Kahalgaon, District Bhagalpur, the Silk City. The Kahalgaon Super Thermal Power Station is situated on the bank of Ganga near Kahalgaon town. Something unique about Kahalgaon is that here the course of Ganga is changed and is flowing from south to north. Since the laying of the foundation stone, NTPC Kahalgaon is on its path of progress. The total capacity of the plant is 2,340 megawatt. The plant comprises of 7 units. In stage 1, there are 4 units of 210 megawatts each with a capacity of 840 megawatts and 3 units of 500 megawatts each in stage 2. The concern for CSR is reflected in the fact that all projects and stations of the corporation take up CSR activities at the inception stage itself through its initial community development activities. Emanating from this philosophy, Talcher Kaniha, situated in the Angul district of Odisha, is yet another success story in the area of CSR. At Kaniha, the efforts dedicated towards the CSR can be broadly classified as educational and vocational training, health and sanitation, infrastructure including roads, safe drinking water, environment and ecology, capacity building and empowerment, promotion of art, culture and sports, support to differently abled persons, honoring freedom fighters, Swachhata Abhiyan and more. बौद्ध और सिख धर्म की स्थापना के साथ रामचरितमानस के लेखक महाकवि संत तुलसीदास की कर्मस्थली और संत कबीर की जन्मस्थली भी है वाराणसी। धार्मिक मान्यता के साथ साथ वाराणसी ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसी ज्ञान नगरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है गांव टडिया। इस छोटे से गांव के प्रगतिशील किसान श्री जयप्रकाश सिंह ने बीज उत्पादन के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। आसपास के गांव वाले इन्हें जयप्रकाश बीजवाला के नाम से जानते हैं। Dadri, located near Ghaziabad district of Uttar Pradesh, the National Capital Thermal Power Project, Dadri, is giving back to nature and to society by creating habitats for many resident birds and wintering home for migratory birds. The wetland has become a home for many species of birds. To escape the harsh and extreme climate of their natural habitat, some birds move to warmer places and come to suitable places like this wetland during winter.
So, in the NTPC unit in Dadri, a step has been taken to set an example that development need not always lead only to environmental destruction, but also can be planned to incorporate many environment-friendly ideas, and steps can be taken to revive or restore what we have endangered or lost. आज की तेज रफ्तार दुनिया ने कृषि को भी प्रभावित किया है। पुराने और रिवायती ढंग से खेती हमारे लिए कष्टदायी और समय की बर्बादी लगने लगी है। शहर की ओर पलायन के कारण खेतों में काम करने वाले मजदूरों की कमी एक आम बात बनकर रह गई है। कृषि व्यवस्था की ये एक जमीनी सच्चाई है। इस सच्चाई को चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने बखूबी समझा और हिमाचल प्रदेश में कृषि अनुसंधान और उसके साधनों के आधुनिकीकरण की एक कार्य योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। पुष्पन्ति वृक्षा परोपकाराय छाया ददाति सर्वे जनानां परोपकाराय फलन्ति पादपाः परोपकाराय idam shariram. Environment is a gift of nature given by God. Harmony between man and environment is the essence of healthy life and growth. Therefore, maintenance of ecological balance and a pristine environment has been of utmost importance. विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है और फलस्वरूप राख बनती है। हमारे देश में थर्मल पावर प्लांट्स में प्रतिवर्ष 3,250 लाख टन कोयले की खपत होती है और लगभग 1,300 लाख टन राख बनती है, जिसे फ्लाई ऐश भी कहा जाता है। राख का उत्पादन 2012 तक 2,000 लाख टन प्रति वर्ष से अधिक होने की संभावना है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। उससे पहले चलते हैं अपने योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे आज के स्पेशल योगासन। जीवन को जीना है, जीवन को समझना है तो होश में आना अनिवार्य है। और होश में आने के लिए सबसे पहले संसार को अनुभव नहीं करना, होश में आना है और स्वयं से मिलना है, स्वयं को जुड़ना है। हम जो अगली एक्सरसाइज करेंगे, आपने उस एक्सरसाइज को करना है पूरे होश के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ। यदि आपके हाथ उठेंगे, आपकी कमर घूमेगी, तो आप पूरे होश के साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे, आप पाएंगे कि ये होश आपके लिए जागृति बनती गई। पंडित जी, मेरी और मेरे भाई की बराबर की जमीन है, लेकिन वो मालामाल हो रहा है और मैं कंगाल। मेरी भाग्य रेखा देखकर बताइए ना। दयाराम, ये भाग्य का नहीं, तुम्हारे काम के तरीके का दोष है। तुम्हारा भाई फसल चक्रानुसार खेती करता है, माइक्रो पद्धति से सिंचाई करता है और वर्षा के पानी का संचय भी करता है, जो वर्षा काल के बाद काम में आता है। तुम ज्यादा पानी सोखने वाली फसल बोते हो। जानते हो, खेत में जल भराव से जमीन खराब होती है और फसल भी घटती है। समझ गया पंडित जी, अब मैं फसल चक्रानुसार ही खेती करूंगा। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज तुम लोग ये वक्त और घड़ी की बातें क्यों कर रहे हो। अरे जब देखो टिक 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 करती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। मैं अपने कमरे की घड़ी को पाजी और शैतान के नाम से पुकारता हूँ।
एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए महिला और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों में से किसी एक की भी कमी हुई तो सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा। मानस भी साथ दे रहे, मैं अपने मनसाना भी समझा रही हूँ, बहुआना भी समझा रही हूँ। भैया वर्ण हत्या एक है माड़ा काम से। कन्या भ्रूण हत्या के लिए मैंने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है और अब तक मैं 35,000 सिग्नेचर करा चुकी हूँ। पंचायत और ग्राम सभा ने जन जागरण अभियान को आधार बनाकर सबसे पहले ग्राम वासियों की मदद से इस समस्या पर रोक लगाने की योजना बनाई। शास्त्रों ने इस बात पर बल दिया है कि सक्षम और समर्थ समाज अपने से कमजोर और असमर्थ व्यक्तियों और समुदाय की यथाशक्ति सहायता करे। इसी भावना को बड़े बड़े औद्योगिक समुदायों ने नैगम सामाजिक दायित्व की नीति के रूप में अपनाया।